الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم شعیب اقبال صاحب، منچ پہ بیٹھے ہوئے علماء، میرے بزرگوں اور میرے بھائی اور بہنوں، میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکت اور رحمت آپ سب پہ ہو۔ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ میں تقریر اکثر انگریزی میں ہی کرتا ہوں۔ چند موقع پہ جب آرگنائزر اصرار کرتے ہیں کہ میں اردو میں ہی کہوں، چند موقع پہ صرف میں اردو میں تقریر کر چکا ہوں۔ اسی لیے آج بھی آرگنائزر نے مجھ سے کہا ہے، جامعۃ اہل حدیث دلی کے، کہ تقریر صرف ہندی یا اردو میں ہونا چاہیے۔ اور آپ یہ جانتے ہوں گے کہ مجھے مہارت الحمدللہ انگریزی میں ہے، اردو زبان پہ مہارت نہیں ہے۔ تو آج کی تقریر میں جو بھی غلطیاں ہوں گی اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ میں اکثر جب میں انگریزی میں بھی تقریر کرتا ہوں، جو بھی غلطیاں ہوتے ہیں وہ شیطان اور میرے طرف سے ہوتے، جو حق کی بات ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوتے۔ لیکن آج کیونکہ خصوصاً میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ غلطیاں اور ہوئی ہیں، تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں، اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس کا فرض ہے کہ اسلام کی دعوت غیروں تک پہنچائے۔ اور اس تقریر کے شروع میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ نحل، سورہ نمبر 16، آیت نمبر 125۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، جس کے معنی ہے کہ سب لوگوں کو بلاؤ اللہ کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی باتوں کے ساتھ، اور لوگوں سے بحث کرو حسن کے ساتھ اور اچھے طریقہ کار کے ساتھ۔ لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچانے کے کئی طریقے ہیں۔ کچھ طریقے میں سفلتا اور ملتی ہے، کچھ میں کم سفلتا ملتی ہے۔ سب سے عام طریقہ جو مسلمان استعمال کرتے ہیں اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے غیر مسلم کو، وہ ہے کہ اسلام کے بارے میں سینکڑوں اچھی باتیں کرتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی ایک طریقہ ہے جو صحیح ہے، لیکن عام طور پہ اگر کوئی غیر مسلم سے آپ اسلام کے بارے میں سینکڑوں اچھی باتیں کرتے ہیں، اور مان لو مثال کے طور پہ کہ وہ ان باتوں کو قبول کرتا ہے، پھر بھی اس غیر مسلم کے دماغ میں یہ سوال رہے گا، اور وہ شاید کہیں گا ٹھیک ہے اسلام میں اچھی باتیں ہیں، لیکن آپ وہی مسلم ہیں، وہی مسلمان ہیں جو فنڈامنٹلسٹ ہے، جو بنیاد پرست ہے، جو ٹیررسٹ ہے۔ آپ وہی مسلمان ہیں جو ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے، ایک سے زیادہ بیوی رکھتا ہے۔ آپ وہی مسلمان ہیں جس نے اپنا دین تلوار کے بل پر پھیلایا۔ یہ چند باتیں جو اس کے دماغ میں ہیں وہ اسے اسلام کی اچھائیاں قبول کرنے سے روکتی ہے۔ اسی لیے جب بھی میں کوئی بھی غیر مسلم سے ملتا ہوں، میں پہلا سوال اس سے کرتا ہوں کہ آپ کو اسلام میں کیا غلط لگتا ہے، آپ کے پاس اسلام کے خلاف کیا چیز ہے، اور میں اسے مطمئن کرتا ہوں کہ اس کے علم کے حساب سے، بھلے اسے علم میڈیا کے ذریعے ملا یا کتابوں کے ذریعے ملا، صحیح یا غلط، جو بھی علم اس غیر مسلم کے پاس ہے، میں اس سے پہلا سوال پوچھتا ہوں آپ کو اسلام
से क्या नाराजगी है, आपको इस्लाम के मुतालिक क्या चीज आपको गलत लगती है, और मैं उसे मुतमईन करता हूं कि वो इस्लाम के खिलाफ भी बात कर सकता है, कुरान के खिलाफ भी बात कर सकता है, और जब वो मुतमईन हो जाता है तो गैर मुस्लिम 2 या 3 सवालात इस्लाम के मुतालिक करता है। और मेरे 10 साल से ज्यादा तजुर्बे में मैं इस चीज पे पहुंचा हूं कि लगभग आम गैर मुस्लिम के दिमाग में 20 सवालात इस्लाम के मुतालिक है, और ये सवालात जो हैं, कभी भी आप गैर मुस्लिम से पूछेंगे कि आपको इस्लाम के बारे में क्या नाराजगी है, आपको इस्लाम के बारे में क्या चीज पसंद नहीं है, तो वो 2 या 3 या 4 सवालात करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सवालात, ये 20 सवालातों में से ही होता है। 90% ये 3 या 4 सवाल जो करेंगे गैर मुस्लिम, ये 20 सवालात के अंदर से ही होता है। ये कॉमन आम 20 सवालात जो गैर मुस्लिम के जहन में कैसे आए। जिस तरीके से मीडिया इस्लाम को पेश करता है उस तरीके से ये सवालात आते हैं, और आज की इंटरनेशनल मीडिया, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हो, इंटरनेशनल मैगजीन हो, रेडियो स्टेशन हो, टेलीविजन सैटेलाइट चैनल हो, ये सब इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम के मुतालिक गलत फहमियां फैलाते हैं, और कुछ मीडिया खुसूसन इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। और जिस तरीके से मीडिया इस्लाम को पेश करता है उस तरीके से ये सवालात उनके जहन में आते हैं। आज की तारीख में जो 20 सवालात आम गैर मुस्लिम के दिमाग में हैं, 10-20 साल पहले ये सवालात कुछ और थे। 20 साल बाद शायद ये सवालात फिर बदलेंगे। जिस तरीके से मीडिया इस्लाम को पेश करता है उस तरीके से ये सवालात गैर मुस्लिम के दिमाग में आते हैं, और ये 20 सवालात सारे दुनिया में, सारे मुमालिक में वही है। कुछ 1 या 2 सवालात डिपेंडिंग अपॉन द सोसाइटी, माशरे के हिसाब से, उस सोसाइटी के कल्चर के हिसाब से शायद 1 या 2 सवालात और होंगे, लेकिन ये बाकी 20 सवालात सारे दुनिया के मुमालिक, भले अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो या इंडिया हो, ये सवालात सेम हैं, वही हैं। जितना वक्त मुझे दिया गया है उस वक्त में शायद मुमकिन नहीं कि मैं सारे 20 सवाल का जवाब दूं। कोशिश करूंगा कि कम से कम आधे सवालात का जवाब दूं। आज की तारीख में अगर हम ये सारे सवालात का जवाब हिकमत से कुरान और सही हदीस की रोशनी में दे, भले गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल नहीं करें, लेकिन कम से कम उनके दिल में जो नफरत है वो कम से कम दूर कर सकते हैं। और हमारा फर्ज है कि गलतफहमियां हम गैर मुस्लिम के जहन से दूर करें। आज की तारीख में सबसे पहला नंबर 1 मिसकंसेप्शन जो इस्लाम के मुतालिक है वो है लफ्ज जिहाद में। और जिहाद की गलतफहमी सिर्फ गैर मुस्लिम के दरमियान नहीं, बहुत से मुसलमान भी जिहाद के मानी नहीं जानते। आम इंसान ये समझता है, बोले मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, वो ये समझता है कि कोई भी मुसलमान अगर झगड़ रहा है, जंग कर रहा है, कोई भी वजह से, भले वो जाती वजह हो, माल के लिए हो या कोई जमीन के लिए हो, वो समझता है कि वो जिहाद है। ये बिल्कुल गलत है कि कोई भी मुसलमान कोई भी जंग कर रहा है कोई भी वजह से, भले माल के लिए हो, नाम के लिए हो या जगह के लिए, वो जिहाद है। ये बिल्कुल गलत है। जिहाद एक अरबी लफ्ज है जो आता है जहादा से, जिसके मानी टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। उर्दू में हम कहते हैं जिद्दोजहद, जिद्दोजहद करना। और शरीयत के हिसाब से कोई भी शख्स
जो माशरे को सुधारने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है उसे कहते हैं जिहाद। मिसाल के तौर पे कोई अगर जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है उसे कहते हैं जिहाद। अगर कोई मैदान जंग में अपनी जान की हिफाजत कर रहा है उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद का सही मानी जो है वो सिर्फ जिद्दोजहद है और उसको कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर एक तालिब इल्म एग्जामिनेशन पास करने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है उसे अरबी में कहेंगे कि वो जिहाद कर रहा है। जिहाद की मानी है जिद्दोजहद। अगर वो अल्लाह की राह में जिद्दोजहद कर रहा है उसे कहेंगे जिहाद फी सबीलिल्लाह। और कई लोग जब जिहाद का तर्जुमा करते हैं अंग्रेजी में उसका तर्जुमा करते हैं होली वॉर, पाक जंग, और ये बिल्कुल गलत तर्जुमा है क्योंकि होली वॉर अरबी में है हर्ब मुकद्दसा और ये लफ्ज हर्ब मुकद्दसा कहीं भी कुरान में कहीं भी हदीस में नहीं आता। ये लफ्ज अंग्रेजी का जो है होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था क्रूसेडर्स को डिस्क्राइब करने के लिए, जो ईसाई लोग थे जो तलवार के बल पर अपना दीन फैला रहे थे, उसके लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था एज होली वॉर। और अफसोस की बात है कि ना ही सिर्फ गैर मुस्लिम बट कई मुस्लिम स्कॉलर्स इन्वर्ट कॉमर्स अपने आप को जो आलिम कहते हैं इन्वर्ट कॉमर्स वो भी जिहाद का तर्जुमा होली वॉर करते, जो बिल्कुल गलत है। जिहाद का तर्जुमा है टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल, जिद्दोजहद करना। और अक्सर जो लोग इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखते हैं वो इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं और इस्लाम के खिलाफ कई बातें करते हैं। और सबसे आम कुरान की आयत जो इस मौजू पे इस्लाम के खिलाफ लिखने वाले इस्तेमाल करते हैं वो है सूरह तौबा की आयत, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5। और इस आयत का इस्तेमाल हमारे देश के अरुण शूरी, आपने नाम सुना है अरुण शूरी, उन्होंने किताब लिखा वर्ल्ड ऑफ फतवास, वर्ल्ड ऑफ फतवास, उसमें कोट करते हैं कुरान मजीद की आयत सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 और उसका तर्जुमा करते हैं कि आप जब भी कोई काफिर को पाएंगे और उसके ज़हन में है काफिर मतलब हिंदू, काफिर को पाएंगे उसका कत्ल करो। और अगर आप कुरान शरीफ खोलेंगे, कुरान मजीद खोलेंगे और पढ़ेंगे तो उसका ये तर्जुमा सही है कि जब भी आप काफिर को पाएंगे उसका कत्ल करो। लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ये आयत को बीच में से उठा के कोट कर दिया है, आयत को बीच में से उठा के कोट किया हुआ है। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। ये पूरी आयत है, जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है वो गलत है। तो सिर्फ अगर मैं ईसा अलैहिस्सलाम खुदा लिखूंगा और बोलूंगा कुरान में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है तो ये गलत है। कुरान में लिखा है नमाज मत पढ़ो, नशे की हालत में नमाज मत पढ़ो। अगर मैं बोलूंगा कुरान में लिखा नमाज मत पढ़ो तो भाई सही है, कुरान खोलेंगे तो लिखा है नमाज मत पढ़ो। ये पूरी आयत है नशे की हालत में नमाज मत पढ़ो। तो इस तरीके से ये आयत को उठाया गया है कुरान मजीद से और उसका तर्जुमा सही है कि जब भी आप काफिर को पाएंगे उसका कत्ल करो। लेकिन सही मानी जानने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट को जानना जरूरी है। पस मंजर कहते कॉन्टेक्स्ट को ना, मेरी उर्दू जरा ठीक नहीं है तो उसके लिए माफी चाहता हूं। कॉन्टेक्स्ट जानना जरूरी है। अगर आप उसकी कुछ चंद आयत पढ़ेंगे, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से 4 आप पढ़ेंगे तो उससे हमें यह मालूम पड़ता है कि एक सुलह थी, एक पीस ट्रीटी थी मुसलमान और मक्का के मुशरिकों के बीच। और एक तरफा मक्का के मुशरिकों ने इस अमन को, पीस ट्रीटी को तोड़ दिया। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह तौबा में सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में उन्हें तंबीह देते कि आपको 4 महीने का वक्त है अपने आप को सुधारने के लिए, वरना ऐलान जंग। 4 महीने का वक्त है आपको सुधारने के लिए वरना ऐलान जंग। और जंग के मैदान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं मुसलमानों से कि आप डरो मत, जंग के मैदान में
آپ جدوجہد کرو, جہاد کرو, ڈرو مت. اور اگر آپ دشمن کو پائیں گے, یہاں لفظ جو کافر ہے, جو اسلام کو نہیں مانتا ہے, اس کانٹیکسٹ میں دشمن, جب آپ دشمن کو پائیں گے میدان جنگ میں, آپ ڈرو مت, ان کا قتل کرو. تو عام طور پہ کوئی بھی آرمی جنرل, اگر امریکہ ویتنام سے جھگڑا کر رہی تھی اور امریکہ کے پریزیڈنٹ جو ملٹری کا ہیڈ ہے وہ امریکن سولجر سے کہتا ہے کہ میدان جنگ میں آپ جب ویتنامیز کو پائیں گے ان کا قتل کرو, اگر میں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کروں گا لوگ کو غلط فہمی ہوگی, لیکن کانٹیکسٹ کہ میدان جنگ میں دشمن جب حملہ کرنے آتے ہیں, آپ کو قتل کرنے آتے ہیں, ڈرو مت, ان کا قتل کرو. یہ عام آدمی بھی کہیں گا تو کیا بڑی بات ہے. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میدان جنگ میں کہہ رہے ہیں کہ جب یہ دشمن, جب یہ کافر, کافر کا مطلب جو اسلام کو تسلیم نہیں کرتا, پھر چاہے کوئی بھی ہو, کافر مطلب جو اسلام کو جھٹلاتا ہے, وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے, ہندو ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس طریقے سے لوگ کو بھڑکاتے ہیں. تو یہ آپ جانیں گے کانٹیکسٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میدان جنگ میں جب امن کو توڑا اور جب جھگڑنے آتے ہیں تو آپ ڈرو مت, ان کا قتل کرو. تو کیا نئی بات ہے, کوئی بھی آرمی جنرل یہی کہیں گا. اور ارون شوری اپنی کتاب ورلڈ آف فتواز میں آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 7 پہ جم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آیت نمبر 6 میں اس کا جواب ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کافر, یہ مشرک, if they seek asylum, اگر امن چاہتے ہیں تو انہیں صرف چھوڑو مت, take them to a place of security, ان کو ایسی جگہ لے کے جائیے جہاں وہ محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کافر, کوئی مشرک امن چاہتا ہے تو صرف چھوڑ مت دو, ان کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پہ لے کے جائیے. آج کی تاریخ میں, آج کا ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سب سے اچھا دیالو آرمی جنرل یہ کہیں گا کہ دشمن کو جان دو. کون سا آرمی جنرل یہ کہیں گا کہ اس کو حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پہ چھوڑیے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں. اور آپ کوئی بھی آیت دیکھیں گے جہاد کی اور قتال کی جو قرآن مجید میں ہے, اس کے بعد اکثر یہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو امن کرو اور حفاظت سے ان کو چھوڑو. اور اکثر جب میں غیر مسلم سے بات کرتا ہوں جہاد کے بارے میں, مجھے کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طریقے سے کہتا ہے غیر مسلم سے بات کرنا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. آؤ اس بات کو ہم تسلیم کریں جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو جب میں ہندو لوگ سے بات کرتا ہوں جہاد کے بارے میں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے مہابھارت میں, اگر آپ کی مہابھارت پڑھیں گے, اس میں قتال, جنگ, جھگڑنے کے سینکڑوں ہزاروں آیت ہے, قرآن مجید سے کئی گنا زیادہ. تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو وہ مجھ سے کہتے کیونکہ مہابھارت جو ہے نا وہ حق اور باطل کے درمیان جھگڑا ہے, اور حق کے لیے اگر باطل سے جھگڑا کرتے تو صحیح ہے. تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی تو وہی لکھا ہوا ہے. ہاں, اگر قرآن بھی اسی طریقے سے حق کے لیے جھگڑا کرنا کہتا تو ہم کو قرآن سے کوئی ناراضگی نہیں. آسان طریقہ. اور اگر آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا جو سب سے مشہور کتاب ہے ہندو لوگ کی, ہندو مذہب کی سب سے مشہور کتاب, عام طور پہ پڑھی جاتی ہے, یہ بھگوت گیتا ایک صلاح ہے, ایڈوائس ہے جو شری کرشن ارجن کو دیتے ہیں. ارجن کہتے ہیں کہ میں رشتہ سے جھگڑا نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ پوری بھگوت گیتا جو کتاب ہے اس کا مین مقصد ہے کہ شری کرشن ارجن کو یہ ثابت کرنا چاہتے کہ جھگڑنا اچھا ہے. پوری بھگوت گیتا اس کے اوپر ہے. اور اگر آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 43 to 46, بھگوت گیتا ادھیائے 1 شلوکا نمبر 43 to 46, اس میں ارجن کہتے ہیں, ارجن
अपने सारे हथियार जमीन पर रख देते और श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं मेरे रिश्तेदार का कत्ल करने से बेहतर ये समझता हूं कि मैं निहत्था जंग के मैदान पे मर जाऊं। सारे हथियार को जमीन पर रख देते और कहते हैं कि मेरे रिश्तेदार को कत्ल करने से बेहतर ये है कि मैं निहत्था मैदान जंग में मर जाऊं, कत्ल किया जाऊं। इमीडिएटली नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2, अध्याय नंबर 2, वर्स नंबर 2 and 3, श्लोका नंबर 2 और 3, आप कब से बुज़दिल हो गए? From when have this important thought comes in your mind? Important तर्जुमा है, इसके मानी हम उर्दू में कहेंगे आप कब से नपुंसक बन गए। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, आप कब से बुज़दिल हो गए, कब से नपुंसक बन गए? आपको अगर स्वर्ग में जाना है तो झगड़ने पड़ेगा ही। और एक पूरी भगवत गीता उसके बारे में, और आगे पढ़ेंगे भगवत गीता चैप्टर नंबर 2, अध्याय 2, श्लोका नंबर 21, 32, 33, 34, 35। उसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है कि झगड़ना, और खुशनसीब है वो क्षत्रिय जिसको झगड़ने के लिए मौका मिलता है, हक के लिए, कॉन्टेक्स्ट में हक के लिए। अगर मैं कोई हिंदू से कहूं कि आपकी किताब कैसी है, आपकी किताब कह रही है कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, तो बिल्कुल गलत होगा। अगर मैं कहूंगा कि आपकी मजहबी किताब कहती है कि आपके रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये बिल्कुल गलत है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट में ये है कि आपकी किताब कहती है कि बातिल से झगड़ा करो हक के लिए, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो। अगर हक के लिए आप झगड़ा कर रहे हैं तो हक के लिए झगड़ो, चाहे ऑपोजिट साइड से, दूसरी तरफ आपके दुश्मन है या दोस्त है या रिश्तेदार है। अगर कॉन्टेक्स्ट में कहा गया तो सही है, हक के लिए झगड़ना हर एक का फर्ज है। और जो लोग ये उछालते हैं, जैसे जो लोग इस्लाम के खिलाफ लिखते हैं, वो सही बुखारी के हदीस को कोट करते हैं। सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4, जिल्द नंबर 4, हदीस नंबर 46, 46 कोट करते, कहते हैं कि आपके सही बुखारी में लिखा हुआ है, आपके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुजाहिद वो है जो जिहाद कर रहा है अल्लाह के राह में, और अल्लाह ही सिर्फ जानता है कि वो जिहाद कर रहा है कि नहीं। और वो ऐसा इंसान है जो पूरे वक्त नमाज पढ़ रहा है या रोजा रख रहा है। और अगर मुजाहिद मैदान जंग में उसका कत्ल होता है तो वो जन्नत उसे मिलेगी, और अगर वो बच के वापस आता है तो उसे बूटी मिलेगी, मतलब जो धन दौलत है वो उसे मिलेंगी। तो लोग ये कहते हैं कि कैसी किताब है आपकी, कि आप अगर लोगों का कत्ल करने जिहाद पे जाएंगे तो आपको जन्नत मिलेंगी, और इस हदीस को उछालते हैं। अफसोस की बात है कि अगर हम कुरान का मुताला करें, कुरान कहता है ताल्लु इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अगर आप पढ़ेंगे भगवत गीता, हिंदू से कहना चाहिए, अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे अध्याय नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, श्लोका नंबर 37, इसके अंदर श्री कृष्ण कहते हैं कि ओ अर्जुन, जाके आप किताल करो, झगड़ा करो, अगर आपकी मौत होगी तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर आप वापस आएंगे तो आपको इस दुनिया का ऐशो आराम मिलेगा। हूबहू जो सही बुखारी में लिखा हुआ है वही भगवत गीता में लिखा हुआ है। अगर जो बात यकसा है हमें उसे मानना चाहिए, उसका मतलब नहीं कि सब चीज सही है उनकी किताब में, बट जो चीज सही है उसे हमें तस्लीम करना चाहिए। तो उनके भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। अफसोस की बात यह है मुझे कि जितने लोग इस्लाम के खिलाफ लिखते हैं, खुसूसन अरुण शूरी, उनने शायद अपनी महाभारत और भगवत गीता का मुताला किया ही नहीं होगा। अगर किया होता तो जरूर ये बातें इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ नहीं लिखी होती। तो इस तरीके से हमें गैर मुस्लिम से इस्लाम के बारे में कहना चाहिए। मिसाल के तौर पे 1 साल पहले
या 1.5 साल पहले मुझे बुलाया गया था लॉस एंजलिस में, एक अवार्ड दिया गया था लॉस एंजलिस में, और सिर्फ 1 दिन के लिए था मैं उधर। आने जाने में 2 दिन गए, लेकिन था 1 दिन के लिए। और मुझे पता था कि 11 सितंबर के पहले में एक बार था, 9 सितंबर में, 9 तारीख सितंबर की 2001 में था। मैं 2 दिन पहले वहां से निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद पहली बार मैं 11 सितंबर के बाद यूएसए जाता हूं, और मुझे पता था, मैं तैयार था कि कई बातें होंगी, ज़हनी तौर पे तैयार था। तो वहां जब मुझे पूछा गया था तो कई सवाल हुए। मुख्तसर से जिहाद के बारे में कहूंगा। मेरे बैग में एक कैसेट थी, जिहाद एंड टेररिज्म, टेररिज्म जिहाद एंड इस्लामिक पर्सपेक्टिव। और जानबूझ के मैंने उस कस्टम ऑफिसर से कहा कि मैं इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के लिए, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जाऊं जांच पड़ताल के लिए, जानबूझ के, क्या मुझे कोई मौका मिलेगा दावत करने के लिए। इमिग्रेशन में तो दावत की मैंने, अभी वक्त नहीं बोलने के लिए। फिर मैं कस्टम ऑफिसर के वहां गया, क्या आपके पास है? तो मैंने कैसेट दिखाया, ओ जिहाद एंड टेररिज्म, आप जिहाद में मानते हैं? मैं बोला बिल्कुल सही, मैं मानता हूं जिहाद में। आपके ईसा अलैहिस्सलाम भी जिहाद में मानते थे। आपकी अगर आप किताब पढ़ेंगे बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट में, बुक ऑफ नंबर्स, उसमें लिखा हुआ है कि झगड़ा करो, लड़ो। आपके ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में कि जाके झगड़ा करो। तो जिस तरीके से आपकी किताब में लिखा है हक के लिए झगड़ा करो, उस झगड़े में मैं भी मानता हूं। तो इस तरीके से कई चीजें हुई, गुफ्तगू हुई, और उस सिलसिले में माशाअल्लाह 8-10 कस्टम ऑफिसर एक साथ जमा हो गए और एक मुख्तसर सी तकरीर हो गई। सर कैन वी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन? साहब एक सवाल पूछ सकते हैं? मैं बोला नो प्रॉब्लम। मैं मेरे लोग से कहा फोन करके, भाई मैं इधर हूं, आप घबराओ मत, सर दावत कर रहा हूं मैं। और मैंने उनसे कहा कि देखो आपके पास बंदूक है, अगर कोई शख्स नहीं जानता कि जो नीला कपड़ा पहने हैं वो पुलिस का कपड़ा है, वो आपको दहशतगर्द समझ सकता है, तो हंसने लगे हो। किसी को लेबल देने के पहले ये जानना चाहिए, हाथ में बंदूक मतलब दहशतगर्द हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पुलिस भी हो सकता है। जिस तरीके से बॉम्बे के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था कुछ साल पहले, 1 साल 1.5 साल पहले, जिसमें लिखा था इंस्पेक्टर आंग्रे ही इज अ टेररिस्ट फॉर द अंडरवर्ल्ड। मतलब जो लोग गलत काम करते हैं, अंडरवर्ल्ड जो गुंडे लोग हैं, उनके लिए एक दहशतगर्द है इंस्पेक्टर आंग्रे। तो ये जबान है हमारी। इंस्पेक्टर आंग्रे को टाइम्स ऑफ इंडिया ने दहशतगर्द कहा था, किसके लिए? गुंडों के लिए, जो लोग गलत काम कर रहे हैं, अंडरवर्ल्ड के लिए। तो इस तरीके से हमें हक बात करने से कभी घबराना नहीं चाहिए, लेकिन किस तरीके से करना वो हमें कुरान से मिलता है। तो अगर हम मुसलमान कुरान पढ़ेंगे, सही हदीस पढ़ेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह हमें कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी इस्लाम पेश करने में। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।